Welcome once again. Let's start our topic from where we have left. And now we are going towards creating the queries, which is very important because once we have saved and store our data into the database, we have to extract the database. So the totality of the information in the database, the relationship between its tables are called the database schema. Thus, the schema is a map or plan of the entire database. So what we have done till yet is the schema of the using the previous student parking example, the schema would be all the information that a university might store about car registration and parking tickets. We have studied an example of parking tickets of a university student in chapter 3, if you can recall them, and I hope there is a table in the next page as well. I will show you. Any particular user or application program will normally be interested in the subset of the database. We are not always concerned about, or we are not always interested in the database which is available in the big picture, but we want to have some subsets of database to make some decisions. So it is important to know how to draw a subset from the data. For example, one subschema for our parking database might be the information required by the university registrar. For example, the student name, social security number, and outstanding parking tickets. Some schemas are important design elements because they dedicate or dictate what data each user needs. And it will also allow us to make our data restricted for unauthorized entry. Creating a select query. बेटा ये आवाजें पीछे से बंद करें, माइक बंद कर दें काइंडली. जब तक आपका क्वेश्चन ना हो तब तक आप माइक नहीं ओपन करेंगे. तो अभी तक हमने जो बात की है वो हमने बात की है कि जरूरी नहीं है कि तमाम जो डेटाबेस आपने स्टोर की हुई है उसी डेटाबेस से ही आपका काम हो. कई दफा आपको डिसीजन मेकिंग के लिए एक छोटा सा सबसेट ऑफ डाटा भी चाहिए होता है. आप लोग हर दफा पूरे के पूरे डेटाबेस को खंगालते नहीं है. जैसा कि अगर मैं बात करूं कि आप लोग BS4 मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों की क्लास में गर्ल्स मौजूद हैं, बॉयज मौजूद हैं, उनके मुख्तलिफ एड्रेसेस हैं. तो अगर मैं सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न हूँ कि मुझे वो डाटा चाहिए जो कि स्टूडेंट जो उनसे हैं वो गुलामदाबाद वाली साइड से आते हैं या कनाल रोड वाली साइड से आते हैं या किसी पर्टिकुलर टाउन की तरफ से आते हैं, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का डाटा चाहिए जो कि एक पर्टिकुलर टाउन से आते हैं या एक पर्टिकुलर फील्ड में कोई उसका एट्रीब्यूट है, तो मुझे वो डाटा चाहिए. उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्यूरीज जो उनसे हैं वो डिज़ाइन करते हैं. क्यूरी कैसे बनाई जाती हैं वो तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं. हम वन बाय वन चलते हैं. एक सिलेक्ट क्यूरी है कि हमें डाटा सिलेक्शन करके लेके आके दे, तो हम उसको देखते हैं. ये वन टेबल सिलेक्ट क्यूरी है. इसको लिखने का तरीका, इसको बनाने का तरीका हम देखते हैं. तो ये बात करता है कि a select query create a dataset of database information based on two types of user specified criteria. So whenever we are going to design a query, it is based on certain criterias. There are two certain criterias. Number one, which record to include, कि आपको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, कौन सा रिकॉर्ड रिपोर्ट में शामिल होगा. नंबर टू, कौन कौन सी फील्ड रिकॉर्ड में शामिल होगी. जरूरी नहीं है कि आपने एक लंबी रिकॉर्ड की लिस्ट बनाई हुई है, तमाम इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की हुई है, तो आपकी रिपोर्ट में भी वो तमाम इंफॉर्मेशन आए. आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए, मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए. तो ये दो फील्ड्स भी आप अपनी रिपोर्ट में जनरेट कर सकते हैं थ्रू क्यूरी. तो हम देखते हैं कि इसको आगे कैसे हम बनाया जाता है. 4-13 is a picture. Here is a picture
जो कि ये शो कर रही है कि कैसे एक क्यूरी वर्क करती है। तो सिंगल क्राइटेरियन पे हम चलते हैं। कहता है टू क्रिएट अ सिंपल फिल्टर क्यूरी, फर्स्ट क्लिक ऑन द क्रिएट टैब on the main menu bar. In the create menu, click query design. So I will do it for you. Let me see. Okay, now you can see here is the create, here is the query design, and which table you want to have a query. Let's see, we want to go for master file, table master file. Okay, here I have done 2 times the remove table. Okay, now you can see here is certain things which is written here. I will note for you. These are the fields, different criteria available to design your query. Number one is the field. Now I will select the field which is required in our query. So I need the first name of the employee. Then I need the department code of the employee. And then I need pay rate of the employee, date of hire, and then pay rate. So this is the design in which we can assure what kind of fields we can add in our query. यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे जरा पूछ लें। सर ये जो टेबल बनाया ये दोबारा सर रिपीट कर दें प्लीज। बेटा ये हम अब क्यूरी डिजाइन कर रहे हैं, हम टेबल नहीं डिजाइन कर रहे, क्यूरी डिजाइन कर रहे हैं। यस सर क्यूरी। ठीक है, अब हम एक्चुअली चाहते क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है। मैं लेट मी सी, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। चले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं सबसे पहले कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है कि वी वांट द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज which have pay rate over $10. Clear? So we have different type of employees available in our organization, but we want only the record of those employees which have pay rate over $10. Number two, this is the one criteria which was written. The second criteria, we need the information in the following form. We need name of the employee, we need a department code, then we need pay rate and date of hiring. Clear? यस सर। अब ये बात आपको समझ आ गई? हम चाहते क्या हैं, हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ वो एम्प्लॉयज जिनका पे रेट $10 से ज्यादा है उनका डाटा हमें चाहिए। और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो हमारे पास आए उसमें सिर्फ 4 फील्ड्स इंक्लूड हों। नेम हो एम्प्लॉय का, उसका डिपार्टमेंट कोड हो, उसका पे रेट हो और उसकी डेट ऑफ हायरिंग हो। दैट्स ऑल। क्लियर?
Okay, sir. Okay. So what we are जी going सर to do is we are going to select the same fields which were required by our question. First name of the employee, department code, date of hire, and pay rate. And what was the criteria actually? You can see here, this is the criteria. And now you can write here the criteria as we want the data of those employees which have pay rate greater than 10, right? Yes, sir. ये सबको समझ आ गया? सर ओके अब यहाँ पे अगर आप ये ऊपर देखें, ये अब आपको नजर आ रहा है? ओके लेट्स मी सर माइक ऑफ करवा दें, पीछे से आवाजें बहुत आ रही। अच्छा बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें, ये रन का बटन नजर आ रहा है आपको। अब हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा इस क्यूरी को। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो टेबल पहले था और उसमें और इस टेबल में बड़ा फर्क है। अब मैं टेबल भी आपके सामने मास्टर फाइल का खोलता हूँ, उसका भी रिकॉर्ड आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास बहुत बड़ा टेबल था जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज थी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज का 10 था, कुछ का 10 से ज्यादा था। तो 10 से ज्यादा वाले हमारे पास ज्यादा हैं, इसलिए हमें बड़े इजीली ये नजर आ गए कि ये जब आपने क्यूरी देखी तो क्यूरी के अंदर देखें आपके पास पे रेट भी आ गया, डेट ऑफ हायर भी आ गया, डिपार्टमेंट कोड भी आ गया और उनका फर्स्ट नेम भी आ गया। तो हमें ये 4 चीजें चाहिए थी सिर्फ। अब अगर आप इस क्राइटेरिया को चेंज करना चाहते हैं, से हम कहते हैं कि जी 10 नहीं, हम चाहते हैं कि हमें वो उन एम्प्लॉयज का डाटा मिले जिनका 15 से ज्यादा है, तो अगेन आप इसको रन करेंगे तो अब ये देखें हमारे पास सिर्फ 20, 17 और 18 जिनका पे रेट है उनका डाटा हमारे पास आ गया। So this is one criteria how you are going to create a query, and now you have to save the query and you can save it with the name like QRY, and you can write employee pay rate greater than 15। तो ये हमने देखें इस क्यूरी का नाम भी रख लिया, हमने इसको सेव कर लिया, और अब जब भी हम इस क्यूरी को रन करना चाहेंगे तो वी कैन इजीली रन इट। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास ये क्यूरी भी आ गई है। ये टेबल है और ये टेबल के साथ क्यूरी है। तो हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि टीबीएल से हमने जो स्टार्ट किया था वो टेबल था, क्यूआरवाई से हमने जो स्टार्ट किया वो क्यूरी है। तो हम जब भी क्यूरी को रन करना चाहेंगे तो हम डबल क्लिक करेंगे और वो क्यूरी सामने आ जाएगी। राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे तो हम इसका क्राइटेरिया भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा, हमने 15 कहा, अब हम इसे कहते हैं 17 कर दे, और उसके बाद हम इसको सेव कर दें। सेव कर देते हैं। तो अब ये देखें, अब जब हम इसको डबल रन करेंगे तो अब ये हमारा क्राइटेरिया चेंज हो गया। क्लियर होगी बात? यहाँ तक बेटा किसी को बात समझ ना आई हो? यस सर सो क्यूरी आपको बनानी आ गई। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनाई है वो हमने डिस्कस कर ली हुई है?
पहले डिस्कस कर ली थी हमने असाइनमेंट? क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कैसे करना था असाइनमेंट नंबर 2 का? हेलो सर क्वेश्चन नंबर 1 ही किया था। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया? डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 ही किया था। हाँ जी, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 ही सिर्फ डिस्कस करने वाला था, बाकी तो थ्योरेटिकल से क्वेश्चन थे और उससे आपको साथ-साथ सारी समझ आ जाएगी कि करना क्या था। यहाँ पे देखिए ना, सेकंड क्वेश्चन था, व्हाई डू डेटाबेस डेवलपर लिंक टेबल टुगेदर्स। तो ये तो हमने बताया कि लिंक क्यों करते हैं और इसको एक्सेस में कैसे किया जाता है, रिलेशनशिप बनाने का तरीका आपने बताना था। फिर व्हाट इज़ डाटा वैलिडेशन हमने अभी पढ़ा है, आज भी पढ़ा है और इसको सीखा भी है, इसको कैसे डाटा को हम वैलिडेट करते हैं, तो ये हम एक्सेस में कैसे करते हैं, ये भी आप लोगों ने करना है। एग्जाम्पल बनाएँ और उसकी पिक्चर बना के अपनी जो सी असाइनमेंट में लगा दें। ठीक है? इसी तरह इन्फॉर्मेशन जौन-सी है फिगर 4-20 में है आपकी किताब में, उसको देखें और उसके मुताबिक जौन-सा है ये सारे बाकी काम करें। अब मेरा ख़्याल में अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, कुछ चैप्टर 4 से रिलेटेड, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीक आप लोगों की जो मेरे साथ क्लास है, ट्राई करेंगे उसके अंदर चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 का, वो आप लोग करके अपनी स्क्रीन्स पे खोल के रखें, ताकि मेरे साथ आप वो डिस्कस करें, सीखें क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना था और क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है? ओके सर। देखिए असाइनमेंट जो है आपकी वो एक अलग बात है, असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या किया,